Hello everyone, welcome back to our channel Way to English Literature. I hope you are all good and doing well in your studies. So, today we are doing literary terms and literary theory simultaneously. So, be with me and I will be covering important question and key facts you have to read for your exam. See this highlighted portion like for Abbey Theatre. So, we are heading first with letter alphabet Abbey Theatre. So you know how important these are, like theaters, movements. Indirectly, directly, you have 10 or 5 questions in your exam. So don't miss these questions if you want to qualify NET or JRF, or if you want to get seat of your assistant professor or any government exam related with English literature. So let's see the first Abbey Theatre. This is the celebrated Dublin home. I will be doing fast because I have to cover as many as the topics. So हम इसका जल्दी से जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने already highlight कर रखा है. And also I will be adding some of the questions that are already asked in the exam. Like you will see this side question what is related with Abbey Theatre and important key facts. If it has occur in exam, I will be adding for you to get help or you so to become correlated with that. So celebrated Dublin home of Irish dramatic movement that is founded in 1899. Remember this point, it is founded in 1899. उसके साथ क्या है, एंड इट इज़ फाउंडेड बाय, कौन है एग्जीक्यूटिव इनके, W.V. येट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न एरा राइटर. Then another important writer, Augusta Gregory, Edward Martin. These are the three writers who took this innovative step and founded Abbey Theatre, the first incarnated as the Irish literary theatre. So this theatre became one of the first literary theatre in the history of Irish literature and later इसी theatre को national theatre भी घोषित किया गया. Another important fact that these early important contributed for this theatre were two local acting brother. जो contribute किया था उन्होंने वो दो acting brother. ये जो fact है वो अधिकतर students को नहीं पता and they miss this fact because Wikipedia is already covering this fact but you are not focusing on these facts. तो इसे याद रखना है आपको कि दो acting brother थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन था. उनका नाम था विलियम एंड द फ्रैंक फ्रे. दीज विथ कॉमा लगा हुआ है, फिर साथ में लिखा है प्ले राइट डायरेक्टर जॉन साइने एंड वेल्दी टी हैरिस एन हॉरीमैन. तो ये जो थे ये कंट्रीब्यूटेड थे इस थिएटर के. हुज पैट्रोनेज अलाउ फॉर द एक्विजिशन ऑफ एबे थिएटर एबे स्ट्रीट स्टाइल इनकॉपरेटिंग ओल्ड सिटी मॉग. ये जो थिएटर था फिर फाउंडेड हुआ 1899 में. कब इसका ओपनिंग हुआ वो फर्स्ट था 1904. रिमेंबर दिस, इट वॉज फर्स्ट. अगर क्वेश्चन आता है फाउंडेड इज अनदर थिंग, अगर क्वेश्चन आता है कि कब ओपन हुआ तो अलग है. रिमेंबर द वर्ड, गलती नहीं करनी है. पब्लिश्ड है जो मैनिफेस्टो है, मूव्ड एम टू ब्रिंग अपॉन द स्टेज डीपर थॉट्स एंड इमोशन लैंड. सो यहाँ के जो पब्लिशर हैं जो भी वो थे उन्होंने दे हैव थॉट दैट द मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हमारा आयरिश मूवमेंट चल रहा है उसमें हमारा स्टेज पर वो थिंग परफॉर्म हो जो कनेक्ट कर रहा है विथ आयरलैंड की हिस्ट्री से, विथ आयरलैंड की लिटरेचर से. टू शो व्हाट इज़ द एम, कोटेशन में लिखा हुआ है, टू शो दैट द आयरलैंड इज़ नॉट द होम of buffoonery and easy sentiments but the home of ancient idealism. You can see because they want to, वो safeguard करना चाहते थे अपना literature को. So that's why they have innovated this style. This early synthesis of national ideological and the cultural aim would characterize spirit Abbey Theatre throughout the turbulent century to come. So moving ahead, सो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखनी, इट्स ओपनिंग नाइट जब ये ओपन हुआ, द सिग्ने प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. ये जो है जो साइने है उनका जो वर्क है प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये वन ऑफ द 100 बेस्ट वर्क्स में आता है 1907. was the greeted with the root on the account of allegedly immoral unpatriotic portrait of Irish women. तो इसकी जो स्टोरी है वो इससे रिलेटेड है. periodically attracting popular acclaim and criticism in the equal measure. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो एबे थिएटर था,
एबे कंटिन्यू टू कमीशन एंड प्रोड्यूस। तो इस वक्त 1900 के बाद प्ले उस पे प्ले होते गए, पब्लिश्ड प्ले राइट्स जो है अपने परफॉर्म करवाते गए। जो वर्क्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क्स जिनके प्ले राइट के यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं वर्क्स, वो कौन कौन से हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए। यू कैन सी इंक्लूडिंग पेड्रिक कॉलमन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड लियोनॉक्स रॉबिन्सन। ये जो है जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इन पर परफॉर्म हुए। इसका जो फॉर्च्यून है थिएटर का वो स्लोली डिक्लाइन हुआ। और क्यों डिक्लाइन हुआ? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल विदड्रॉ बाय हॉरिंगमैन, क्योंकि हॉरिंगमैन वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर थे और उन्होंने अपना फाइनेंशियल विदड्रॉ 1909 में कर दिया, तो इसका जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो गया। देन द 3 फेमस प्लेज बाय सीन ओ कैसी, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म हुआ और इस वजह से क्या हुआ, फेमस हो गया ये थिएटर। Premiering in 1923 at the height of Irish Civil War, 1923 यहाँ तक जो है आयरिश इस थिएटर पे बहुत ज़्यादा प्ले होते गए, पब्लिश्ड होते गए थे। देन ऑल्सो जो इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें प्ले 1926 प्रीमियरिंग इन 1923 एट द हाइट ऑफ आयरिश सिविल वॉर, उसमें सीक्वेंस ऑफ प्लेज लिखे हुए हैं। यू कैन रीड दिस लाइक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जूनियो एंड प्ले कुक, ये पब्लिश्ड हुआ, ये परफॉर्म हुआ। फिर उसके बाद प्लग एंड स्टार, ये डोंट नीड टू रिमेंबर दिस बिट्स, ओनली ये देखो कि क्या क्या होता गया था उस वक्त इस थिएटर में, क्यों डिक्लाइन हुआ, क्यों ये थिएटर क्लोज हो गया। लास्ट दीज वंस कॉज सिविल डिसऑर्डर। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे 1925 में जो थिएटर रिसीव अ ग्रांट, उनको एक ग्रांट मिला इस थिएटर को, द आयरिश गवर्नमेंट। वो ग्रांट किसके द्वारा था? आयरिश गवर्नमेंट खुद ग्रांट दे रही है, क्योंकि थिएटर चलाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और जो उनके पार्टनर थे, जो उनके कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, वो धीरे धीरे बैक हो रहे थे। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इस थिएटर को चलाने के लिए। सो दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो थिएटर है वो उसका सोल एग्जीक्यूटिव रोल जो है इनका, वो है W.V. येट्स। तो व्हेन W.V. येट्स डाइड इन 19, जब आप ये देखोगे कि 1939 में जब W.V. येट्स खुद डाई होते हैं 1939 में, तो ये जो थिएटर है वो डिक्लाइन के मोड में आ जाता है। और इस डिक्लाइन के मोड में आने की वजह से हमने ये देखा है कि जो कंपनी है इट वाज फोर्स्ड टू, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस फैक्ट कि इट वाज फोर्स्ड टू रीलोकेट। अब ये क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में, ओल्ड क्वींस थिएटर इज रिलेटेड विथ, ये जो ओल्ड क्वीन थिएटर है वो किससे रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यूजीसी क्या करता है, कई बार ट्विस्ट कर देता है और कंफ्यूज करने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स को, और इसी कोशिश में यू विल एंड आप क्वेश्चन गलत कर देते हो और फेल हो जाते हो। तो डोंट डू दैट। हम क्या, कंपनी जो है वो फोर्स हुई है टू रीलोकेट टू ओल्ड क्वींस थिएटर, फोर्स टू ओल्ड क्वींस थिएटर शिफ्ट हुई है। एंड इट्स एग्जाइल एबे स्ट्रीट है, वहाँ पे ये बंद हो गया और वहाँ चल रहा है जहाँ पे ओल्ड क्वींस थिएटर है। सो 1960 में हम ये देखेंगे विद द रीबिल्डिंग ऑफ सेकंड थिएटर, जो सेकंड थिएटर ऑन द ओरिजिनल साइट, हम ये देखा है कि जहाँ पे एबे थिएटर था वहाँ पे ओरिजिनल साइट पे दूसरा रीबिल्ड हुआ है थिएटर। द प्ले हाउस री इन्वोक्ड इट्स एक्सपेरिमेंटल हेरिटेज। तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ एंड कैसे ये मूव होता है विथ आइकॉनिक थिएटर वंस अगेन। एंड यू विल सी कि कैसे आइकॉनिक थिएटर वंस अगेन इट वाज रीलोकेटिंग एंड बॉक्स क्रिएट कर दी। ये जो पोर्शन है जिसे मैंने बॉक्स लगा दिया, सो इसका जो पॉजिटिव चेंज है वो इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ कि जो प्ले राइट है सच एज हग लियोनार्ड, बैरियन फेयर एंड टॉम मर्फी, इनके जो प्लेज है वो परफॉर्म हो रहे हैं और वो फेमस हो रहे हैं इस थिएटर पे भी। सो it is the positive changes occurring. Now we will see this portion. You can see I have put the arrow mark. So arrow mark मैंने put किया है और आप ये देख सकते हो this work, this word abbey. So how to say this, abbey tenure Roman. So ये जो word है, अब यहाँ पे एक चीज़ highlight हुई है, means जी लिखा हुआ है। जी का मतलब है जर्मन लिटरेचर। सो इसका जर्मन में इसका मीनिंग है एडवेंचर नॉवल। इसका मीन्स एडवेंचर मीन्स इन ब्रिटिश लिटरेचर वी से
पिकारेस्क्यू नॉवल, ऐसी नॉवल जो क्या करती है, कवर करती है होल लाइफ ऑफ अ हीरो, एडवेंचर ऑफ अ हीरो, लाइक एडवेंचर बाय, जैसे कि किसने लिखा है, यू हैव टू कमेंट डाउन, वन ऑफ द मोस्ट पिकारेस्क्यू नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर इज बाय। सो ये एक फॉर्म ऑफ एडवेंचरस या पिकारेस्क्यू नॉवल है जो कवर करती है एडवेंचर ऑफ द लाइफ ऑफ द हीरो, बट इन अ सीरियस फॉर्म। किस तरीके से ये जो है वो सीरियस फॉर्म में कवर करती है। सीरीज ऑफ टेस्टिंग, अब क्या, व्हाट इज गिवन हियर, दैट सीरीज ऑफ टेस्टिंग एंड एपिसोडिक एडवेंचर। सो ये ऑलरेडी काउंट करता है क्योंकि इसमें हमें एडवेंचर ऑफ हीरो, ट्रैवल, उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, चेंजेस वी हैव टू सी, सच एज वर्ड्स फॉर्म हर्ज़ोग, अर्नेस्ट। एग्जाम्पल दिए हुए, रीड दैट एग्जाम्पल, ट्राई टू कवर, ट्राई टू रीड, इन एग्जाम्पल को ट्राई करो, जैसे कि हर्ज़ोग, अर्नेस्ट। नेम्स, क्योंकि ये जो नेम्स दिए हुए हैं ये एक्चुअली मेडिवल वर्सेस टेल्स हैं, जैसे कि हर्ज़ोग, अर्नेस्ट, ये जो सलमान एंड मॉर्फ, ये एडवेंचरियस जो मेडिवल इंग्लिश मेडिवल वर्सेस टेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, उनके बारे में रेफरेंस दिया हुआ है। बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमें सिर्फ अभी का याद रखना है कि ब्रिटिश लिटरेचर में या फिर जर्मन लिटरेचर का इम्पॉर्टेंट थिंग ये हम नोट करेंगे। बट रिमेंबर दिस वर्ड कि हाउ जर्मन लिटरेचर में पिकारेस्क्यू नॉवल को क्या बोलते हैं। ये जो फॉर्म है जर्मन के, इसमें आपको जो वर्क्स है यू डोंट नीड टू रिमेंबर, बट हमारे जो लिटरेचर के, ब्रिटिश लिटरेचर के वर्क्स है, यू हैव टू सी दैट कि वो रिलेटेड है कैसे। जैसे कि तो यहाँ पे दिया हुआ है साफ एग्जांपल, आई हैव हाईलाइटेड थॉमस डीकर का ओल्ड फॉर्च्यूनस 1600। फिर देन द सो कॉल्ड सिंपली सेंच शिफ्टेरियन सीरीज़ जो है, किसके द्वारा लिखी गई है ये सीरीज़, दिस सीरीज़ इज़ रिटन बाय जॉन ग्रीमेंसन, उनके द्वारा लिखी गई है, वो भी रिलेटेड है इस स्टाइल से। रिमेंबर दिस थिंग। द पॉपुलरिटी फॉर्म ऑफ सेंचुरीज लेटर 17-18 सेंचुरी में ये पॉपुलर होता गया और राइटर्स इस स्टाइल को अडॉप्ट करते गए। मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखेंगे, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बाय एब्जेक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्जेक्शन, ये क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। सो ये बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई हैव टेकन दिस वन, बिकॉज इसमें हम लिटरेरी थ्योरी भी कवर करेंगे और लिटरेरी टर्म्स भी कवर करेंगे। सो हमारे एक तीर से दो काम हो रहे हैं, सो वाई नॉट। सो हमें ये जो बुक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हम एक साथ दो चीज़ें कर रहे हैं, हम लिटरेरी टर्म्स भी कर रहे हैं जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करेगा। तो एब्जेक्शन क्या होता है, दिस, एक तो सबसे पहले आपको ये कीवर्ड याद रखना है, इट इज़ डेवलप्ड बाय जूलिया क्रिस्टेवा। जब आप करो, अब अनदर ट्रिक दैट आई विल बी टेलिंग यू, जब भी आप ऐसे कोई वर्क करते हैं, जब भी आप बुक रीड करते हैं और किसी राइटर का नाम आता है आपके सामने एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हु इज़ दैट राइटर, कि क्या है या फिर कैसे रिलेटेड है वो राइटर, तो आपको क्या करना है, उस राइटर के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा सा, क्योंकि इट विल बी हेल्पिंग यू टू बिल्ड योर बैकग्राउंड इन द मेमोरी। और वो जो बैकग्राउंड मेमोरी में आपका क्रिएट होता है, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है टू रिमेंबर द आइडिया। जैसे जूलिया क्रिस्टेवा है, शी इज़ बल्गेरियन एंड फ्रेंच फिलोसोफर एंड लिटरेरी क्रिटिक। तो इनका जो वर्क है इन द पावर ऑफ ऑर्डर, ये जो वर्क है इन द पावर ऑफ ऑर्डर 1980, इस वर्क में इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया है ऑब्जेक्शन, टू एक्सप्लेन द फॉर्म एंड मेंटेनेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, जो जूलिया क्रिस्टेवा है, अ सब्जेक्ट फॉर्मेशन दैट इज डेवलप्ड ऑफ अ डिस्क्रीट आई। सो ये इंपॉर्टेंट है, विथ डिस्क्रीट आई। जब भी आई के बारे में बोल रहे हैं तो ये किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, मिरर स्टेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मिरर थ्योरी। यू हैव टू रीड इट इन डिटेल, बट हम ये शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि क्या क्या एग्जाम के लिए पढ़ना है। व्हेन यू विल सर्च व्हाट इज़ मिरर, क्योंकि इन्होंने ये जो ईगो है, सुपर ईगो एंड ईगो, ये जो तीन फॉर्म है, इनके फॉर्म के बारे में इन्होंने बात की है। सबसे पहले बात लेकिन ने की है, लेकिन ने अपने स्टेज में कि कैसा जो बच्चा है उसके अंदर ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, एंड कैसे वो जो चीज़ें हैं वो डेवलप होती है, और उसी के बारे में जूलिया क्रिस्टेवा अपने वर्क में, रिमेंबर दिस
आई एम रिपीटिंग अगेन, जूलिया क्रिस्टेवा अपने वर्क में द पावर्स ऑफ ऑर्डर इन 1980 उसमें ये वर्ड कॉइन किया है एब्जेक्शन, क्योंकि इतना ही फैक्ट्स एग्जाम में आ सकता है। ये फैक्ट डायरेक्टली आ सकता है कि एब्जेक्शन वर्ड है वो कॉइन किया गया है बाय तो जूलिया क्रिस्टेवा, या फिर आ सकता है पावर ऑफ ऑर्डर में इस आई जो है उसका रिलेशन है किससे, एब्जेक्शन से। लाइक दिस यू हैव टू रीड, अगर आई विल बी मार्किंग, आपको यहाँ से पढ़ना है। सो even in the Lekin's mirror stage, the infant creates border between I and other by objecting। मेरे और आप में फ़र्क करना, भेदभाव बनाना, वही हमारी जो मेंटल जो है डेवलपमेंट वो होता है। violently throwing out jetsoning that seems improper। सो यहाँ पे जो जूलिया क्रिस्टेवा है वो अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं कि कैसे जो ये एग्जाम्पल है ऑब्जेक्शन का, कैसे जो डेवलपमेंट ऑफ माइंड है और कैसे जो उन्होंने सोर मिल्क जो फटा हुआ दूध होता है उनका एग्जाम्पल इसके साथ दिया है। जस्ट गूगल सर्च एंड ट्राई टू रीड कि कैसे ये जो सेंस है डेवलपमेंट ऑफ माइंड है उन्होंने उससे कनेक्ट किया है। सो हम जब भी कोई टॉपिक करेंगे तो वो टॉपिक बहुत टफ होगा आपके लिए, क्योंकि वो हम पहली बार कर रहे हैं। वो हम जब आपने वो टॉपिक कर रखा होगा, जैसे जूलिया क्रिस्टेवा कर रखा हो, पर कई फैक्ट्स जो हैं आपको नहीं मिलते किसी भी बुक में, तो हम जब ये वर्ड कर रहे हैं ऑब्जेक्शन, यू विल सी दैट मीनिंग, इसका वर्ड का मीनिंग क्या है और किस रिलेटेड है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इट इज़ द साइको एनालिसिस डेवलप बाय जूलिया क्रिस्टेवा इन दिस हर बुक। और ये बुक ये जो वर्ड है वो किस बारे में बोल रहा है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लाइक पुट दिस नोट, इफ़ यू कैन सी, ये नोट अगर देख पा रहे हो, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस ऐप, मैंने बहुत बार बताया है, इसी में मैं नोट्स बनाती हूँ, इसी में मैं पढ़ती हूँ। सो यू कैन डू द सेम थिंग व्हाट इट सेज दैट। इसका मतलब ये है ह्यूमन रिएक्शन। जैसे कि हम वॉमिट करते हैं, हमारा अगर कोई हमें चीज़ पचती नहीं है तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं, वॉमिट करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्शन का मीन्स है ह्यूमन रिएक्शन। जब जैसे कोई मुंह से वॉमिट करना, हॉरर और एनी रिएक्शन, डिस्गस्ट, एंगर, ये सब जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दीज आर रिलेटेड, दीज आर कॉल्ड एब्जेक्शन। ठीक है, आगे से आपको याद आएगा, बहुत ईजी है, इट इज़ नॉट सो टफ। ह्यूमन रिएक्शन, उसका एग्जाम्पल दिया है वॉमिटिंग, डिस्गस्ट या फिर एनी ब्रेक डाउन। ह्यूमन जो भी हम रिएक्ट करते हैं वो सब चीज़ें एब्जेक्शन के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू जूलिया क्रिस्टेवा। Okay, moving forward, I hope you have understand this. If you are not understanding, let me know. I will be clearing more and more points. उसे मैं अलग से भी करवा सकती हूँ, क्योंकि वो आपको एटलीस्ट वो समझ में आनी चाहिए। Because understanding is more important than running and doing the topic in a one day. So अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, बट हमें फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक पे अटके रहेंगे तो वी विल नॉट डू मल्टीपल थिंग्स। Heading toward Ebonist literature. So this kind of literature is referred to the 18th and 19th century literature. अब इसके लिए भी मैंने की नोट ऐड कर दिया है विद इन, यू कैन सी द शॉर्ट की नोट, वो मैंने ऐड कर दिया है, वो आपको यहाँ से जो वीडियो के अबव में भी दिख जाएगा, बट आई विल बी क्लिकिंग ऑन दैट पार्ट एंड you can see that ये writing, urbanist literature is the type of writing deal with the friction, non-frictional speeches and the poem that is created during in the 18th and the 19th century। अब देखो इसमें हमारे जो पार्ट है, हमने 2-3 लिटरेरी टर्म्स भी किए हैं, अब हम लिटरेरी थियोरी भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो आपको दोनों ही माइंड में कवर हो रहे हैं। ये क्या करता है, ये टाइप ऑफ लिटरेचर अपोज कर रहा है, मीन्स अगेंस्ट है, अपोज ऑफ द स्लेवरी, प्रमोट इरेडिक्शन, स्लेवरी के खिलाफ है, एंटी स्लेवरी है। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, फ्लूइंग द एबोनिस्ट मूवमेंट इन द यूएसए, ब्रिटेन एंड बियॉन्ड। अब आपको ये याद रखना है, इसमें जो की फैक्ट्स हैं हम वो निकालेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैंने हाईलाइट किए हैं। यू कैन सी दैट Black British, African American, white European American men and women campaigned. They started this abolish slavery in the ब्रिटिश एम्पायर एंड द नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे उन्होंने ये स्टार्ट किया है। एंड ओरिजिन ऑफ अबोनिस्ट लिटरेचर कैन बी फाउंड इन द लॉन्ग हिस्ट्री इन द स्लेव रिवॉल्यूशन।
पर्टिकुलर इन द कैरिबियन एंड द कॉलोनीज इन द 17 एंड 18 सेंचुरी। तो ये जो थिंग है वो आपको ऐसे मिलेगा, साथ साथ में हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके की फीचर मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किए हुए आपको दिख रहे हैं इस अबाउ पेज में, ये सब जो हाईलाइट है वो इसके की फीचर्स है। इनह्यूमैनिटी ऑफ स्लेवरी क्या मिलेगा, किसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। इनह्यूमैनिटी ऑफ स्लेवरी यूजेस सेंटिमेंटल बाइब्लिकल रेफरेंस हमें मिलेगा। इसमें मॉरल एंड इमोशनल अपील के बारे में आपको लिटरेचर, इट इज़ पॉलिटिकल एक्टिविटी, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टोन भी हो सकता है वर्क का। अब ये जो वर्क है मिसलेनियस राइटिंग कवर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, पोइट्रीज भी हो सकते हैं, नॉवल भी हो सकते हैं, सॉन्ग है। और ये जो वर्क है वो डायरेक्ट हमें अफ्रीकन अमेरिकन या फिर जो कैरिबियन लिटरेचर है उसमें हमें डायरेक्ट दिखने को मिलता है। देन वी ऑल्सो सी दैट अबनिश लिटरेचर जो है कॉम्प्रोमाइज करता है बॉडी ऑफ राइटिंग। इफ़ यू आर राइटिंग इन एमए एग्जाम तो आपको ये डेफिनेशन तो ज़रूर से लिखनी है कि अ डाइवर्स बॉडी ऑफ राइटिंग मटीरियल कल्चर रेंजिंग फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द फेमस इंस्क्रिप्शन, एक वर्क है उसका इंस्क्रिप्शन उठाया है, एम आई नॉट अ मैन एंड अ ब्रदर क्वेश्चन मार्क 1787। और ये जो वर्क है जसुआ वेटगुड का है, उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है और उस पे ये वर्क लिखा है। आई एम नॉट अ वुमेन, ये भी वर्क है बहुत फेमस विमेन एक्टिविटीज सृजनल ट्रुथ के द्वारा है और उन्होंने 18 सेंचुरी में लिखा है। ये दो वर्क्स मैंने एरो लगा दिए हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और वॉट एवर यू वांट। मूविंग अहेड, ये जो टाइप ऑफ लिटरेचर है इन इंग्लिश वांट मूविंग अहेड, ये जो टाइप ऑफ लिटरेचर है इन इंग्लिश ये बताते हैं हमें स्लेवरी नरेटिव ब्रिटिश और अबनिस्ट के बारे में। और जो राइटर्स हैं उनके मैंने नाम यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। क्वेकर मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये यूजीसी में आ चुका है, आई विल बी एडिंग क्वेश्चन हियर। तो जो क्वेकर मूवमेंट है एंटी स्लेवरी राइटिंग बाय क्वेकर्स, क्वेकर्स कौन है वो भी हम आगे करेंगे, आप आगे करते जाओगे। फॉर रिमूविंग दिस, जो भी हमारी सोसाइटी में जो था उस चीज़ को वो रिमूव करना चाहते थे और ऐसे ही करके एंटी स्लेवरी सोसाइटी सेटअप हुई इन 1833। ओके और जो अबर्निस्ट अब यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। जब भी अबर्निस्ट लिटरेचर के बारे में बात करी जाती है तो हम ऐसे राइटर्स के बारे में बात करते हैं जिनके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अंकल टॉम्स कैबिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क 1852, हमेशा इनका नाम आएगा। फिर अनदर इंपॉर्टेंट वर्क बाय डॉगलस, नरेटिव ऑफ लाइफ ऑफ फेडरिक डॉगलस, उनकी ही खुद की ऑटोबायोग्राफी है। अनदर इंपॉर्टेंट वर्क बाय हैरियट जैकॉब्स, इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल 1863। ऐसे करके हमारे पास ये राइटिंग है जो डील करती है डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्लेवरी। नाउ मूविंग अहेड, हम ये देखेंगे कि जो इकोनॉमिक नेचर है स्लेवरी का अमेरिका में, वन ऑफ द की लीडिंग फिगर टू द सिविल वॉर इन 1861 और अबॉनिश्ड हुआ ये। इसके साथ साथ हमें इसमें लिखा हुआ है यू कैन डू सेंटिमेंट नॉवल, सेंटिमेंटल नॉवेल्स भी कर सकते हो। फ्रॉम दिस हम ये देखेंगे एब ओवो, ये जो वर्ड है इस नाम का मीनिंग क्या है। ये एक लैटिन, अब देखो एल लिखा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था आपको, जी लिखा हुआ तो मतलब जर्मन था, इसमें एल लिखा हुआ इट मीन्स लैटिन, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब है फ्रॉम द एग, इट मीन्स फ्रॉम द एग। दिस टर्म may refer to a story which start from the beginning of event and it narrate as opposed to one which start in the middle। और ये जो वर्ड है हमें देखने को मिला है इन द आर्ट पोएटिका। सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये वर्ड हमें कहाँ देखने को मिला है, एक्सप्रेशन यूज्ड बाय हॉरेस, हॉरेस ने यूज़ किया है इन आर्ट पोएटिका। सो अब तक हमने 5-6 लिटरेरी टर्म्स और 2-3 हमने लिटरेरी थ्योरी कर ली है। नाउ वी विल डूइंग एब्सेंस एंड प्रेजेंस, ये यहाँ पे एरो, आई विल बी एडिंग दिस एरो, एब्सेंस एंड प्रेजेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सेंस एंड, पहला ये वर्ड किसने दिया है, दिस इज वर्ड गिवन बाय जैक्विस डरेडा। जैक्विस डरेडा ने ये वर्ड इनोवेट किया है, इन ये फ्रेंच फिलोसोफर है एंड ही एडेड दिस वर्क एब्सेंस एंड प्रेजेंस। तो ये वर्ड क्या इम्प्लाई करता है, प्रेजेंस ऑफ समबडी, प्रेजेंस ऑफ मीनिंग। Presence of somebody means presence of meaning within the text. There is nothing outside text. What he said, उन्होंने क्या बोला था, there is nothing outside a text. तो मतलब absence and presence of क्या है, particular meaning. What
है पर्टिकुलर मीनिंग। द की ओरिएटर, एक्टर, पॉलिटिशियन, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग डज नॉट रिक्वायर द राइटर्स प्रेजेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइटिंग डजेंट रिक्वायर राइटर्स प्रेजेंस। दस ओरिजिनेटर ऑफ द वर्ड इज एब्सेंट। तो मतलब ओरिजिनेटर होता है उस शब्द का ओरिजिनेटर। जैसे मैं इस वीडियो के ओरिजिनेटर हूँ, अगर मैं अपना फेस ना दिखाऊं और मैं पीछे से अपनी वॉइस ऐड करूं तो मेरा प्रेजेंस एब्सेंस है, बट माई वॉइस इज प्रेजेंट, मेरा मीनिंग प्रेजेंट है। लाइक दैट ही वॉन्ट टू से रेफर। तो ये वर्ड कीवर्ड याद रखना है। जो वर्ड करने वाले हैं वो एब्सोल्यूटिज्म करने वाले हैं। एब्सोल्यूट एक डॉक्ट्राइन है, एक प्रिंसिपल है, जो एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है, एक बेसिक इनवॉल्युबल डॉक्ट्राइन है। वो डील करता है एब्सोल्यूट मोनार्क की तरफ, पावर ऑफ वन हैंड, पॉलिटिकल अथॉरिटी के ऊपर फोकस करता है, प्रिंसिपल ऑफ अनलिमिटेड सेंट्रल पावर पर फोकस करता है। सो इट इज़ नॉर्मल थिंग, यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। एब्सोल्यूटिज्म किसने दिया, कुछ दिया, ये एक डॉक्ट्राइन है, फिलोसॉफी है, प्रिंसिपल है। यू हैव टू रिमेंबर एब्सोल्यूट मीन्स अनलिमिटेड पावर ऑन वन हैंड, इन वन हैंड सॉरी, एक ही हाथ में, एक ही मोनार्क के हाथ में अनलिमिटेड पावर होना, उसको हम एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। सो अभी तक हमने 10 जो भी है मैंने करवा दिए हैं आपको की टर्म्स। यहाँ तक आप इसे रिवाइज करो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस कीवर्ड, लेट नो, you can comment down or email me. I will be there for you. I will be responding you whatever problem you are facing. So on the ending note, for literary terms and literary theory, we have done these list of things. ये list of हमने किए हैं। प्लीज़, आई थिंक दीज आर 7, एक रिपीट हो चुका है इसमें। तो ये जो 7 है लिटरेरी टर्म्स एंड थ्योरी, इसको वापस से करो और इसको समझो। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू 10 मोर, 10 या 12 करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।